جن لوگوں کو فکر کرنے کی، غور اور فکر کرنے کی اچھی عادت ہوتی ہے، ان کی سمجھ تھوڑی سی الگ ہوتی ہے، بہترین انسان ہوتے ہیں، اخلاق والے ہوتے ہیں۔ اب دیکھیے، اگر آپ میری بات تھوڑا سا ٹھہر کر اطمینان سے سنیں گے تو پوری طرح سے سمجھ بھی جائیں گے، اور آپ کا وہ نقصان ہونے سے آپ کی حفاظت ہو جائے گی، آپ کی آخرت بھی اچھی ہو جائے گی کہ آپ کو بتایا نہیں جاتا کہ آپ نقصان میں کیسے ہو، اور آپ جو کر رہے ہو وہ صحیح نہیں ہے، اس کے بارے میں نہ آپ کو کوئی بتاتا ہے اور نہ آپ کو فکر ہے۔ تھوڑی دیر بنے رہیے میرے ساتھ میں، تو میں آپ کو اچھی طرح سے جتنا مجھ سے بن سکے کہ آسان لینگویج میں آپ کو سمجھاؤں، تو میں کوشش کرتا ہوں۔ دیکھیے، غور اور فکر کی بات میں نے پہلے شروع کر دی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کسی بھی بات کا اینالائز کرنا، یعنی جو چیز ایسی ہے تو ایسی کیوں ہے، اچھی ہے تو کتنی اچھی ہے، بری ہے تو کتنی بری ہے۔ یعنی بازار میں آپ 10 روپے کا ٹماٹر لیتے ہو، دھنیا لیتے ہو، تو 3-4 بار الٹ پلٹ کر دیکھتے ہو، تازگی ہے، اچھا ہے، برا ہے، یہ سب دیکھتے ہو۔ یہ آپ کی سمجھ میں آتا ہے۔ اللہ نے اور اللہ کے رسول نے آپ کی تعریف کی ہے، اس امت کی تعریف کی ہے کہ تم بہترین امت ہو۔ یہ تعریف کرتے ہوئے جو ہے وہ اس بات پر جانتے تھے کہ یہ غور فکر ان کا دیکھیے، اللہ اور اللہ کے رسول کا، ان دونوں کا غور اور فکر دیکھیے کہ اس نے جو ہے اس امت کی تعریف کی کہ تم بہترین امت ہو، تم پچھلی جو امتیں گئی ہے ان سب کی سردار ہو، تو کچھ تو کوالٹی ہوگی نا آپ میں۔ جب آپ دھنیا ادھر ادھر کر کے دیکھتے ہو تو کیا خدا اور رسول نے دیکھا نہیں ہوگا؟ آپ میں وہ صلاحیت ہے، وہ کوالٹی ہے۔ آپ ایک بہت اچھے، ایک ہیرے کے مانند ہو، لیکن آپ نے جو ہے اپنے اوپر کی جو دھول ہے وہ کبھی پھونکنے کی بھی کوشش نہیں کی ہے۔ مثال کے طور پر اللہ نے رسول کے بارے میں فرمایا کہ میرا یہ جو نبی ہے یہ میری مرضی کے بغیر ایک بات تک نہیں کرتا ہے۔ تو اللہ کے رسول نے جو ہے اپنے جاتے وقت امت کو کوئی نصیحت نہیں کی ہوگی کہ آخری وقت میں آدمی وہ بات کرتا ہے جو اپنی نچوڑ ہے، کہ اپنا سرمایہ، اپنی دولت اگر اس نے کہیں چھپا کر رکھی ہے تو وہ اپنے سب سے پیارے بچے جو ہیں ان کو بتانا ہے۔ کوئی سائنٹسٹ ہے، اگر اس نے کوئی بات بنائی ہے تو سب سے پہلے جو سب سے جانکار ہے، جو صلاحیت رکھتا ہے، جو ایکسپرٹ بننے کے لائق ہے، ایسے شخص کو ضرور بتا کر یہ دنیا سے چلا جائے گا۔ ایسا نہیں ہے کہ اس نے کوئی چیز بنائی ہے اور وہ اکیلا ہی چلا گیا اور باقی جو ہے جو اس نے ریسرچ کی ہوئی ہے وہ ایسے ہی دب گئی۔ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو بتائی ضرور جاتی۔ تو رسول اللہ نے جو ہے جانے سے پہلے ہمیں کئی باتیں جو ہیں، ہمیں زندگی کس طرح سے جینی ہے، کس طرح سے اینالائز کرنا ہے، کس طرح سے غور اور فکر کرنا ہے، یہ ہمیں سمجھا کر ہی گئے ہیں۔ ہمارا دھیان صرف اس طرف نہیں ہے، اور نہ ہمیں کوئی ممبر پر بیٹھ کر اس بات کی طرف دھیان دلاتا ہے۔ ان میں سے ایک بات ایسی کہ جو قرآن کے ساتھ رہا، آل رسول کے ساتھ رہا، وہ کامیاب ہے۔ اب آپ اپنے آپ پر غور کیجئے کہ آپ ان دو چیزوں میں سے کس کے ساتھ ہیں۔ اگر آپ نے صرف قرآن کو پکڑا تو آپ آدھا اسلام جانتے ہیں، اور آدھا آپ سے جو ہے محروم۔ آپ اس برکت سے، اس نعمت سے محروم ہیں۔ آپ نے آل رسول کے ساتھ میں جو ہے تعلقات نہیں بنائے، نہ آپ نے انہیں ڈھونڈا کہ یہ لوگ آج اس دور میں کہاں ہیں، تو ان کی طرف آپ کا دھیان نہیں ہے۔ تو یہ چیز جو ہے یہاں آپ نقصان میں آ گئے۔ دوسری،
रसूलुल्लाह इस दुनिया से जाने से पहले हज़रत अली का हाथ में लिया और उसे ऊंचा पकड़ कर कहा कि मन कुन तो मौला, जिसका मैं मौला अली उसका मौला। इस बात की तरफ, इस हदीस की तरफ जितना सीरियसली इस्लाम के जो मानने वाले हैं, जो उम्मती है, उनका ध्यान कभी नहीं गया। हाँ, सिर्फ इसकी आवाज़ जो है एक शिया तबका है वो उठाता है, और हम लोगों को ऐसा लगता है कि ये हदीसें जो है सिर्फ शिया लोगों की है। ऐसा नहीं। शिया क्या अपने हाथ से कोई चीज़ बनाते नहीं हैं। कोई चीज़ है तभी तो वो अपनी जान लड़ा कर जो है वो उस चीज़ को दबाव बनाते हैं और आवाज़ उठाते हैं। हमें जो है सिर्फ इस तरफ ध्यान दिलाने की कोशिश नहीं की जा रही है, हमें वो चीज़ की तरफ, यानी देखिए ये जो यहूदी तबका है, यहूदी तबका जब इसने स्टडी किया कि हम लोग जो है कुरान में कोई तब्दीली ला नहीं सकते, तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने तफसीर में, कुरान की जो तफसीर है उसमें जो है थोड़ा सा ऐसी चीज़ें डाल दी जिससे जो है लोगों को ये लगे कि ये सच है, लेकिन वो कुछ होती नहीं है। मिसाल के तौर पर एक चीज़ हमारे अंदर एक हदीस बन के घूम रही है, वो है कि मेरे सहाबा सितारों के मानिंद है और आप उनके नक्शे कदम पर चलिए। अब एक चीज़ को, इस बयान को यानी इस हदीस को, जो सहाबा वाली बात रसूलुल्लाह ने कही, उसको ज़रा अलग रखिए, और कुरान और अहले बैत के साथ में रहने वाली जो बात है, जो हदीस है, इसको अलग रखिए। अब ये दोनों का फ़र्क मैं आपको बताता हूँ। फ़र्क ये है कि सहाबी, इसकी डेफिनेशन, सहाबी की डेफिनेशन क्या है कि अगर ईमान की हालत में जिसने नबी को देखा तो वो सहाबी है। ये डेफिनेशन हो गई। अब देखिए, जो सहाबी नबी को ऐसी हालत में देखा जिसने इस्लाम अख्तियार किया, ईमान लाया, नमाज पढ़ा, बाकी सब चीज़ें की, कलमा पढ़ा, ऐसी हालत में देखने वाले को सहाबी कहा गया। यहाँ तक आप समझ गए। अब ये सहाबी की इसे जो है शक इसलिए आता है कि समझ लीजिए कि रसूलुल्लाह के जाने के बाद थोड़ा सा स्टडी भी कर लीजिए कि समझ में आ जाए आपकी कि नबी की इस दुनिया से जाने के बाद फ़ौरन ही कुछ ही वक्त गुज़रा होगा कि एक तबके ने ज़कात देने से मना किया। उन्होंने अलल ऐलान कह दिया कि हम ज़कात नहीं देंगे। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ को इनसे जंग करनी पड़ी, हालांकि इन्होंने इस्लाम छोड़ा नहीं था। ये लोग बाकायदा कलमा पढ़ते थे, 5 फ़र्ज़ अच्छी तरह से अदा करते थे। नबी के जाने के बाद में एक फ़र्ज़ का इन लोगों ने जो है इनकार कर दिया। अबू बकर सिद्दीक़ को जंग करनी पड़ी। कलमा ये लोग पढ़ते हैं, इन्होंने इस्लाम नहीं छोड़ा लेकिन ज़कात का इनकार कर दिया। अब देखिए, ये भी सहाबी थे। अगर इस हदीस के सच्चे होने की तरफ अगर आपका ध्यान है तो इस बात की तरफ ध्यान देखिए कि सहाबी कोई ऐसी बात नहीं करेगा जो रसूल ने कहा है और उसने उसके खिलाफ अमल किया होगा। ये हिस्ट्री आप जानते नहीं, तभी तो ये ऐसी कुछ चीज़ों पर जो है आपका ध्यान ना जाते हुए भी उस पर ईमान लाते हो। अब जो है इन लोगों के बातों पर, आप इनके बताए हुए रास्तों पर आप चलेंगे। मैं सिर्फ ज़कात की ही बात कर रहा हूँ, और भी कुछ किया होगा इन लोगों ने। कुछ ऐसे भी सहाबी थे जो मुसलमान भी थे लेकिन जो है सूदखोर भी थे, ब्याज से अपनी दौलत भी कमाते थे। कुछ शराबी थे। कुछ लोगों ने जो छोड़ा उनकी बात अलग है,
उन लोगों की तरफ भी ज़रा ध्यान दीजिए। तो इस हदीस के झूठे होने के सबूत और ख्याल और एनालिटिकली जो है इस बात की तरफ इशारा करते हैं कि ये हदीस, इसमें कुछ गड़बड़ है। अब ईजर की हदीस जो कुरान और अहले बैत के साथ में आपको रहना है, इसकी तरफ अच्छी तरह से अगर गौर करेंगे तो देखिए कितनी कीमती बात है। अहले बैत में से कोई चीज़ इन लोगों में, यानी रसूलुल्लाह की जो भी आल है, अली की आल है, इन लोगों ने कभी 5 फर्जों के अलावा कोई खिलाफ कोई काम नहीं किया। कुरान अपनी जगह बरकरार है। अब कुरान की एक आयत जो है मैं आपको सुनाता हूँ, वो है वल आस्र इन्नल इंसान लफी खुस्र। आसर की कसम, इंसान खसारे में है, नुकसान में है। अब इस नुकसान की तरफ जो है हमारा ध्यान दिलाया ही नहीं जाता कि कौन है वो शख्स। अल्लाह कह रहा है कि नुकसान में। कोई मिंबर पर इस बात की कोई छोटा सा बयान तक नहीं किया जाता कि कौन चीज़ है, क्या चीज़ है जो हमें कह रहा है कि खसारे में है। और कौन बताएगा हमें कि क्या है वो खसारा, क्या नुकसान है जिससे हम कर तो रहे हैं लेकिन हमें पता तक नहीं चल रहा। और ना मिंबर से ऐसी कोई बात होती है। आपको सिर्फ जो है वो ऊपर चीज़ों के बारे में काफ़ी हद तक सीरियसली बताया जाता है। वो बहुत छोटी छोटी चीज़ें होती हैं। और जो असली मलाई है, यानी वो उस चीज़ की रूह या इस्लाम की वो चीज़ जिसका दिल है, वो एक हदीस है। आपको आले रसूल के साथ रहना है, कुरान के साथ रहना है। इन 2 चीज़ों को जो है हमें भटकाया गया। और सिर्फ हमारा नुकसान कहाँ होता है इसकी तरफ हमें ध्यान न दें। कोई ऐसा आलिम, इक्का दुक्का छोड़ दीजिए आप। मैक्सिमम मस्जिदों में आपको ऐसा मोटिवेशनल बयान नहीं किया जाता कि आप कुरान को समझकर पढ़ना है। इसके बारे में आपको कभी कोई नहीं बताएगा। इसलिए आप अपने आप को इस खसारे से बचाना चाहते हैं तो कुरान को समझ कर पढ़िए। और समझ कर पढ़ने के बाद उस दूसरी हदीस की तरफ, जो कुरान को भी अपने साथ रखिए और आले रसूल को ढूंढ कर जो है आपने उनके नक्शे कदम पर चलना है। तब आप उस वल आस्र की जो आयत है वो आपको पता चल जाएगी, आप नुकसान से बच जाएंगे। हो सके तो अगर ऐसा लगता है कि ये बात शेयर करने के लायक है तो ज़रूर कीजिए। अगर मूड हो तो जाते जाते सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जो है लोगों तक बात थोड़ा सा ज़्यादा पहुँचे। मिलते हैं।